all happy to be here today? Yes. Let your joy be visible on your faces. Some of you have masks. I know it may not be visible, but you know what? Our bodies are created in such a way that it's not only the face. Sometimes our body language also shows us and tells us stuff that sometimes we think only our face shows. You know, one of the ways that we can make out you're smiling is through your eyes. Through the eyes, we can make out that someone is smiling. So even when you have your mask on, when you smile, your eyes convey it. Let's all stand. I want us to open our Bibles this morning, even as we begin this time of worship of the living God who is worthy of all worship and praise. आज की सुबह आप सबों का स्वागत है इस सभा में जो कि एक कंबाइंड सभा है. इस वर्ष 2021 के अंतिम रविवार में हम पहुंच चुके हैं और इस रविवार को हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं बीते वर्ष को, बीते महीनों को, बीते सप्ताहों को, किस प्रकार से यहोवा परमेश्वर आपके और मेरे प्रति विश्वास योग्य बना रहा. आमीन. क्या ये सच है आपके लिए? यस, प्रेज गॉड. मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब कल रात को अच्छी तरह सो के विश्राम करके आए हैं और तरोताज़ा होकर आज की सुबह इस भवन में, इस मंदिर में आए हैं. और मेरी प्रार्थना है किसी को नींद ना आए आज के दिन, क्योंकि कुछ लोगों को जमाई लेते हुए मैं देख रहा हूँ. सो अच्छा होगा यदि आप लोग जो जमाई ले रहे हैं आप अपने मास्क को पहने तो कम से कम दिखाई ना दे आप जमाई ले रहे हैं. सो प्रेज गॉड. एंड दिस मॉर्निंग as we lift up our voices in joyful celebration of the Lord God Almighty, हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता उसका 113. भजन संहिता 113. मैं चाहूँगा कि हम सब इस भाग को खोलें अपने अपने बाइबल में. We are looking at Psalm number 113. Psalm number 113. And I want us to read this psalm out loud together as a congregation. मैं चाहूँगा कि हम सब अपने आवाज़ों को उठाकर एक साथ मिलकर इस भजन को हम गाएंगे. भजन 113. Are you ready? All right, let's read together. आइए एक साथ पढ़ें. Praise the Lord. Praise the Lord, you his servants. Praise the name of the Lord. Let the name of the Lord be praised, both now and forevermore. From the rising of the sun to the place where it sets, the name of the Lord is to be praised. The Lord is exalted over all the nations, his glory above the heavens. Who is like the Lord our God, the one who sits enthroned on high, who stoops down to look on the heavens and the earth? He raises the poor from the dust and lifts the needy from the ash heap. He seats them with the princes of his people. He settles the childless woman in her home as a happy mother of children. Praise the Lord. Hallelujah. This is our God. This is our Lord. ये हमारा यहोवा परमेश्वर है और इसीलिए हम उसकी सेवा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसकी हम बढ़ाई करते हैं क्योंकि वो योग्य है. आइए जबकि हम अपने गीतों को गाते हैं, अपने आवाज़ों को उठाकर एक साथ मिलकर हम गाएंगे. Let us sing this hymn of praise. Sing, crown him Lord of all lords. Hallelujah. All hail the power of Jesus' name. Let angels prostrate fall. Bring forth the royal diadem and crown him Lord of all. Bring forth the
We will crown him king. We will crown him Lord. For he is God above all gods, Lord of all lords, and the King of all kings. Who is like unto him? The one who deserves all the praise, all glory and honor. There is no one like our God. He alone is glorious. He alone is victorious. He alone is majestic. Hallelujah. Blessed be the Lord God Almighty. And this morning, even as we rejoice, जबकि हम इन गीतों को गाते हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ गीतों को ना जानते हो, कोई बात नहीं, आप कोशिश कर सकते हैं। आप गा नहीं सकते, कम से कम ताली तो बजा सकते हैं साथ में जब हम गाते हैं अपने गीतों को। और इसीलिए आप हमारे साथ जुड़िए जब हम अपने यहोवा परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। God is good. Is that true? All the time. Is that also true? He put a song of praise in this heart of mine. God is true. His light will shine. Oh yes, how true that is. God is good. He is so good. You know, I think our God deserves a hand of praise right now. Can we do that? Hallelujah. All the time. A song of praise in this heart of mine. God is good all the time, and through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. God is good all the time. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time, through the darkest night, His light will shine. God is good, God is good, all the time. This is your testimony. Let's sing together. If you're walking through the valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you, He will keep you safe and sound. But He has promised to never leave you. That's right. Nor forsake you, and His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time, through the darkest night, His light will shine. God is good, God is good all the time. We were sinners, so unworthy, still for us He chose to die. He filled us with His Holy Spirit. We can stand and testify That is God. His everlasting and His mercies, they will never end. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time, through the darkest night, His light will shine. God is good, God is good all the time. Though I may not understand all the plans you have for me, my life is in your hands, and through the eyes of faith I can clearly see.
is it that you see with your eyes of faith? What do you see? You just sang through the eyes of faith. I can clearly see. What do you see? God's goodness is not something you see, that's something you experience. What does your faith tell you about your situations? What does your faith tell you about your circumstances? What does your faith tell you when it comes to very, very tough circumstances, very unique situations? What does your faith tell you? Through the eyes of faith, I will clearly see, and I pray that you would see it. God is good all the time. The song of praise. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good. God is good. He's so good. My God is good. He's so good all the time. Oh yes, yes, yes. वो भला है सर्वदा हमेशा हमेशा के लिए. वो भला है, वो भला रहेगा. धन्य हो प्रभु यीशु का नाम. धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो. हालेलुया, हालेलुया. धन्य हो यहोवा परमेश्वर का नाम. और इस बीते वर्ष में हमने बहुत कठिन समयों को देखा है. हमने बहुत ही अजीब परिस्थितियों का सामना किया है. ऐसी परिस्थितियां जो शायद ही हम पहले कभी उसमें से निकले हों. बहुत ही चुनौती भरी, शायद कुछ संघर्ष भरी चुनौतियों का, समयों का सामना हमने किया है. लेकिन एक बात तो तय है और निश्चित है, क्योंकि आप सब मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसका अर्थ यह है सबसे पहले यहोवा परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है. दूसरी बात, उसने आपको अच्छे स्वास्थ्य में रखा है. अब भले ही कोई बीमारी से निकले हों, लेकिन आज के दिन आप यहाँ खड़े हैं, भले और चंगे आप खड़े हैं. यहोवा परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी जय जयकार हम करते हैं आज के दिन, क्योंकि वो भला है. चाहे अच्छे समय हो, चाहे कठिन समय हो, जैसे भी परिस्थितियां, यहोवा परमेश्वर की भलाई हमेशा रही है संग में. हालेलुया. ये आपकी गवाही है. क्या ये आपकी गवाही है? हालेलुया. धन्य हो प्रभु यीशु का नाम.
धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम। जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। मुश्किलों की राहों में डर भले हो पर में, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूँ तब भी धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु। Blessed be your name. धन्य तेरा तेजस्वी धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु। Blessed तेरा नाम, blessed तेरा नाम है प्रभु। Blessed तेरा तेजस्वी नाम। मुश्किलें सामने आए, कठिनाई राह में आए, यहोवा फिर भी दिल कहे धन्य तेरा नाम। मुश्किलें सामने आए, कठिनाई राह में आए, यहोवा फिर भी दिल कहे धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु। धन्य तेरा अपने दोनों हाथों को स्वर की ओर उठाकर हम गाएंगे धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम। Let's lift our hands to heaven this morning. धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. The name of the Lord is to be praised from the rising of the sun to its going down. The name of the Lord is to be praised. Hallelujah. सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक यहोवा का नाम धन्य हो। हालेलुया, हालेलुया। अपने दोनों हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठाकर उसको हम धन्य कहें। दोनों हाथों को हम स्वर्ग की ओर उठाकर उसके नाम को हम महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। वो योग्य है, वो योग्य है। अपनी आवाजों को उठाकर हालेलुया उसको हम धन्य कहें। अपनी आवाजों को उठाकर उसकी हम जय जयकार करें। एक आभारी हृदय से हम कहें यहोवा परमेश्वर तू धन्य है, तू धन्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्य हो प्रभु यीशु। हालेलुया, धन्य हो प्रभु यीशु। आपकी कृपा और करुणा इस 2021 के जनवरी महीने से लेकर आज जो कि इस वर्ष का अंतिम रविवार है, हमने आपकी करुणा और भलाई को चख कर देखा है और हमने इस बात को जान लिया है कि आप सच्चे, प्रेमी, करुणामय, दयालु, चिंता करने वाले आप हमारे पिता हैं।
यहोवा परमेश्वर। हालेलुया, धन्य हो प्रभु।
परमेश्वर, जिसका एक दृश्य हमें देखने को मिलता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में। वो अपने सिंहासन पर विराजमान यहोवा परमेश्वर, चारों ओर उसके प्राचीन के सिंहासन, 24 प्राचीन, चारों ओर स्वर्गदूत उड़ते हुए इस बात को पुकारते हैं, वो जो योग्य मेमना है उसी को आदर और महिमा, धन्य उसका नाम होने पाए। वो जो पवित्र 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 है वो विराजमान है। हालेलुया हालेलुया। उसके तुल्य कोई और नहीं है, वो एकमात्र है, एकमात्र अतुल्य यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। Lord, shout to the Lord, all the earth.
you to try. Lift up your hands and sing. Presence of holy Prabhu Yesu ki. Git Namaha. Git Come on, let's give the Lord a hand of praise. एक तालियों का भेंट हम चढ़ाएं आज के सुबह यहोवा परमेश्वर जो महान है, कितना महान, कितना महान, कितना महान. Oh great God, glorious Lord, eternal King. Yes, yes, yes. Hallelujah, 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 hallelujah. धन्य हो प्रभु यीशु, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो आपका नाम. धन्य हो यहोवा परमेश्वर आज की सुबह जबकि हम आपकी उपस्थिति में पाए जाते हैं. धन्य हो आपका नाम, धन्य रहे आपका नाम. जीवन के हर परिस्थिति में, हर एक समय में, हर परिस्थिति में, ओ प्यारे यहोवा परमेश्वर, धन्य रहे आपका नाम. आज की सुबह जब हम आपके उपस्थिति में पाए जाते हैं, होने दे पवित्र आत्मा कि हमारे दिल खुले हों, पवित्र आत्मा, ताकि आप अपने कार्य को हमारे मध्य में करें. मेरे प्रियो, क्यों ना हम इससे पहले कि हम बैठें, बिफोर वी सिट डाउन, जैसे हम प्रकाशित वाक्य में उस दृश्य को पढ़ते हैं, लगातार निरंतर आराधना के गीत के मध्य में परमेश्वर का सिंहासन, और हम इस बात को चाहते हैं कि परमेश्वर अपने सिंहासन को यहाँ पर हमारे मध्य में कुछ समय के लिए, जब तक हम यहाँ पर हैं तब तक वो बनाए रखे अपने सिंहासन को हमारे मध्य में, ताकि उसकी उपस्थिति बनी रहे. और उस सिंहासन को, उसकी उपस्थिति को यहाँ लाने के लिए आप और मैं जिम्मेदार हैं, क्योंकि जहाँ पर हम यीशु के नाम में जमा होते हैं, और भजन लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों के स्तुतियों के बीच में विराजमान है, स्तुतियों के बीच में विराजमान है. जब हम अपने आवाजों को उठाकर उसकी प्रशंसा करते हैं, when we lift our voices in praise and in adoration, then God dwells amongst the praises of his people. And that is why I would like for us to lift our voices this morning. आइए हम अपने आवाजों को उठाकर उसको हम धन्य कहें, उसकी हम प्रशंसा करें, उसको हम धन्य कहें. The Lord who is worthy of all, who is worthy of it all, जो हमारे स्तुति के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है, सारे महिमा के योग्य है, सारा आदर के योग्य. हालेलुया, हालेलुया. उसी की हम बढ़ाई करते हैं आज की सुबह, क्योंकि उसके सिवाय और कोई नहीं है, उसके सिवाय कोई और नहीं है. हालेलुया, हालेलुया. धन्य हो उसका नाम, धन्य हो, धन्य होने पाए. हालेलुया, हालेलुया. Holy Spirit of God, come have your way in this place. Come have your way in this place. Amen. 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 और ये वो दिन है जो यहोवा ने बनाया है, And we will do what? और हम क्या करेंगे. And I am glad that the moment I came here, you all started rejoicing. और मुझे बड़ा आनंद हुआ कि जिस क्षण में इस वेदी पर आया, आप सब ने आनंद मनाना शुरू कर दिया. Welcome to this great service where we experience the presence of our loving Father. और इस सभा में आप सबका स्वागत है, जहां पर हम अपने स्वर्गीय पिता का आराधना, स्तुति और प्रशंसा करते हैं. What a good God we have. और कितना भला परमेश्वर हमारा है. God is what? और परमेश्वर क्या है. And God is good. परमेश्वर भला है. And all the time, और हर समय I am good.
Wow. Sometime all of us are good. और It's so कुछ good. समय हम सब भले हैं, And God's great faithfulness is so amazing. और परमेश्वर की महान विश्वासी योग्यता बड़ी अद्भुत है। Because of His faithfulness, और उसकी विश्वासी योग्यता अनुसार we are here हम आज today. की सुबह इस भवन में Because हैं, of His faithfulness, और उसकी विश्वास योग्यता अनुसार we are still alive and active. और आज की सुबह हम जीवित हैं और अभी भी कार्य कर Because रहे of हैं। His faithfulness, उसकी विश्वास योग्यता अनुसार He has brought us through the past 1 year, which is like supersonic speed. It has gone. क्यों जो पिछले साल में भी उसने हमें संभाला और इस साल के अंत में ले आया, जैसे मानिए वो पिछला साल एक बड़ी तेजी से बीत गया हो And hundreds and thousands and millions in the world has suddenly disappeared from the face of the earth. और सैकड़ों हजारों और लाखों की संख्याओं में लोगों ने इस पृथ्वी को छोड़ दिया। America is having a very hard time in coping with this third wave that is going on. और अमेरिका जो देश है वहाँ पर एक कठिन समय से होकर के वो निकल रहा है, तीसरी लहर जो इस महामारी की वहाँ पर है। And the Britain the same. और ब्रिटेन में भी यही क्षण है और यही परिस्थिति है, Hundreds are still dying. और अभी भी सैकड़ों की गिनती में लोगों की मृत्यु हो रही है। And they say that next month, by the middle of next month, corona will be buried. और वो कहते हैं कि dead अगले and महीने gone. के मध्य तक जो कोरोना या महामारी है ये खत्म हो जाएगी। And so God has allowed something to come behind corona. और इसलिए परमेश्वर ने हो सकता है इस कोरोना के पीछे एक और बात को आने के लिए तैयार कर रखा What is है। it called? और वो क्या है? That is more dangerous. और वो और खतरनाक है। And it is the most people who are afflicted with this are those who got the vaccines. और जो लोग जिन्होंने वैक्सीन ले लिया है उनकी गिनती कई ज्यादा है इस महामारी से संक्रमित होने में। And the people are dying. और लोगों की मृत्यु हो रही है। What is ahead of us? और हमारे सामने क्या है We don't know. हमें नहीं पता, But we as believers of this book लेकिन हम जो इस पवित्र वचन और इस पवित्र शास्त्र पर विश्वास करते know हैं, this one truth, हम एक इस सत्य को जानते हैं that the days ahead of us are not going to be that easy. कि हमारे आने वाले दिन आसान नहीं होंगे। Pestilences will increase. महामारियां आएंगी Natural calamities will intensify its forces. और प्राकृतिक आपदाएं भी कई बहुत रीति से आएंगी Everything is shaken, और हर एक बात हिला दी जाएगी and it will be shaken more और भी ज्यादा हिलाई जाएंगी, because God said so. क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा ही कहा है। He has set a timetable for His agenda, और उसने अपने कार्य और योजना को पूरा करने के लिए एक समय सूची बना and रखी है everything is moving forward according to His timing. और उसके अनुसार ही हर एक बात आगे बढ़ रही And है। all these things proclaim one great truth for God's people. और ये सारी बातें परमेश्वर के लोगों के लिए एक बड़ी सच्चाई को दर्शाती है Get ready. कि आप तैयार हो The जाइए, rapture can happen क्योंकि anytime. कलीसिया का उठाया जाना किसी भी क्षण हो सकता It है, is imminent. क्योंकि ये होना अनिवार्य है That is, anytime it can happen. और ये किसी भी क्षण हो जाएगा। It could have happened anytime in the past. और पिछले बीते सालों में कभी भी हो सकता It था can happen anytime now. और अभी भी कभी भी हो सकता है, So be ready. और इसलिए आप तैयार That रहें। is the message. और ये है And संदेश। so I would like you to turn in your Bibles to the. Now, don't be frightened. Don't worry about और it. कृपया करके डरे ना। Praise God. To the Gospel according to St. Luke chapter 1. और आइए हम लूका रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय की ओर अपने बाइबलों को खोलें। This is Christmas was yesterday. और कल के दिन हमने क्रिसमस By के the पर्व way, को मनाया। every day is a date for Christmas. और आप सबको याद दिला दो कि हर दिन क्रिसमस है For some divine reason. और किसी स्वर्गीय कारणवश। Though the time when Jesus was born, there were writings and records and histories and all that thing. Everybody was there to write there. Somehow, God did not permit anyone to think
of noting down the date of the birth of Jesus. और जब यीशु का जन्म हुआ, कई सारे इतिहासकर्ता मौजूद थे, कई सारे लेखक मौजूद थे और लिखते थे, लेकिन किसी रीति से परमेश्वर ने इस बात का अनुमति नहीं दिया कि यीशु के जन्म का दिन और So तारीख scholars लिखा were जाए। trying for many centuries to discover it. और कई सारे जो शास्त्री हैं इस बात को खोजने में लगे हुए थे और अभी भी लगे हुए हैं किसी रीति से वो दिन So निकालने they में। all made their calculation. और उन सब ने अपना गणित लगाया। And then, you know what's the conclusion? आपको पता है क्या निष्कर्ष निकला? All 365 days has been suggested as the possible birthday of Jesus by different. और अगर सारे धर्मशास्त्रियों को जो विश्व भर में पाए जाते हैं, अगर उन सब की बातों को हम मान लें तो साल के 365 दिन में से हर एक दिन यीशु के जन्म को उन्होंने बताया। So every day is a Christmas. और इसलिए हर दिन क्रिसमस है। So happy Christmas. और इसलिए आप सबको आज के दिन भी हैप्पी क्रिसमस। And not only that, और ना केवल when you इतना ही, have your birthday, when you have your birthday, जब आपका जन्मदिन होता है, some people forget the day. So after a few days, they call me and say, Pastor, a belated happy birthday. तब कुछ लोग भूल जाते हैं और कुछ दिनों के बाद मुझे कॉल करते हैं और कहते हैं, पास्टर बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। So I tell them, you are not late, you are right on time. तब मैं उनसे कहता हूँ आपको देरी नहीं हुई लेकिन आप समय पर हैं। And so because you are late, you think, don't hold back the gift. You send your gift. और क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको देरी हो गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप Because for तोहफे को रोक दें, that whole month is considered to be your birthday month. क्योंकि वो पूरा महीना आपका जन्म का महीना है। So don't worry, nobody brought any gift. और इसलिए चिंता ना करें, कोई भी गिफ्ट नहीं लेकर के आए। But it is a wonderful thing for us to realize that God coming down in His love for humanity and entered into a human body. लेकिन ये तो एक अद्भुत बात है ये जानना कि कैसे परमेश्वर देहधारी होकर एक मानवीय शरीर में हमारे बीच रहा। Oh, I see. Okay, small sentence. Now, remind me, cut me. Certain sentences are very difficult to cut. Okay. Luke chapter 1 verses 26 to 33. और लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 26वें वचन से। You go ahead and read in Hindi. 33. लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय Listen 26वें वचन से लेकर 33 वचन तक। Listen carefully. 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वह उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। Amen. आमीन। All of you who are here, we welcome you and we are glad that you are here joining us in worshiping God. और आज की सुबह आप सब जो यहाँ मौजूद हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और आनंदित हूँ कि आज की सुबह आप इस सभा में जुड़े हैं। Do you have people down? No. Praise the Lord. Lord, we thank you for the word we have read. और परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो तेरा वचन हमने अभी पढ़ा। Now we are ready to listen, O Lord. और अब हम सुनने के लिए तैयार हैं। May your spirit inspire in us and give us a listening ear. और होने दे तेरा पवित्र आत्मा हमें वो प्रोत्साहन दे और वो संवेदनशील कान दे कि हम तेरे वचन से सुनने और समझने पाए। Lord, as I need that anointing to speak it out the way I should. और प्रभु, जैसे मुझे उस अभिषेक की आवश्यकता है ताकि मैं तेरे वचन को उस प्रकार से बोलने पाऊं जैसे तू चाहता है, The same anointing is needed for my brothers and sisters here, my children.
to listen and understand. उसी अभिषेक का जरूरत हमारे इन सभी भाइयों बहनों और बच्चों को भी है ताकि वो तेरे उस संदेश को सुनने So और I ग्रहण pray करने for पाएं। anointing upon us और इसलिए हम प्रार्थना करते हैं तेरे अभिषेक के लिए हमारे ऊपर and your anointing upon your people. और तेरे अभिषेक के लिए तेरे लोगों के ऊपर। Thank you for blessing the word into our और hearts. धन्यवाद हो उस वचन को हमारे हृदयों में आशीषित करने के लिए। Thank you. धन्यवाद। The announcement of the most marvelous event ever happened on planet Earth और is वो- what we read. और वो घोषणा जो कि एक बड़ी अद्भुत रीति या घटना को दर्शाती है जो कभी भी इस पृथ्वी पर हुई उस वचन में हमने अभी पढ़ा। The incarnation and birth of our Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह का देहधारी होना और एक मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आना। There are few things I would like to convey to you. There are three things. और तीन ऐसी बातें हैं जो आज की सुबह मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ। The first thing we should notice in this passage और जो is जो Go ahead. पहली बात है जो हमें वचन के इस भाग में देखनी है the lowly and unassuming manner in which the Savior of the world came among us. कि कितने एकांत और दीनता में इस सृष्टि का उद्धार करता आया। The angel who announced his advent और उस स्वर्गदूत ने जिसके उसके आने की घोषणा को किया was sent to an obscure town of Galilee. वो एक गैलीली नामक एक गलील नामक एक ऐसे नगर में भेजा गया जिसे कोई पहचानता नहीं था Named Nazareth. जिसका नाम नासरत था। The woman who was honored to be our Lord's mother और जिस स्त्री को ये सौभाग्य मिला कि वो हमारे प्रभु की माता या माँ ठहरे was evidently in a very humble position of life. वो तो अपने जीवन की एक बड़ी दीन स्थिति में या परिस्थिति में थी Both in her town और अपने नगर में भी and her dwelling place, और जहाँ पर वो रहती थी वहाँ पर भी there was an utter absence of what the world calls greatness. और अपने नगर और जहाँ पर वो निवास करती थी दोनों स्थानों पर जिस प्रकार से संसार जिन बातों को महान कहता है वो सारी बातें नहीं थी। Yet, लेकिन फिर भी we notice there was a wise providence in all this arrangement of our God in heaven. लेकिन फिर भी हम देखते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने ज्ञान में हर एक बातों को मुहैया कराया अपनी स्वर्गीय योजना में। You know what this Almighty God could have as easily, just as easily have appointed Jerusalem. He could have, instead of Nazareth, he could have appointed Jerusalem to be the place of Mary's residence. और ये परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है बड़ी आसानी से मरियम के रहने के स्थान को यरूशलेम में भी स्थापित कर सकता था इसकी बजाय कि वो नासरत में रहे। It would not have made much difficulty or problem for God to do it. और परमेश्वर के लिए ऐसा करने में कोई मुश्किल नहीं होती। He could have caused Mary to be born in Jerusalem, और ऐसा हो सकता था कईयों को ये मौका वो देता कि वो यरूशलेम in a में पैदा wealthy हो। family, और एक बड़े समृद्ध और धनवान परिवार में or in a palace. या एक राजमहल में, But he didn't. लेकिन परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया। He chose Nazareth, उसने नासरत नगर को चुना a very lowly place. और एक ऐसा स्थान जो बड़ा दीन स्थानों में गिना जाता था। And she could have grown up in some rich scribe to be our Lord's mother. और हो सकता था कि परमेश्वर ये मौका भी मरियम को दे सकता था कि एक बड़े धनवान और प्रसिद्ध परिवार में उसका जन्म होता। But you know, we always say, his thoughts are not our thoughts. और लेकिन हम हमेशा इस बात को कहते हैं कि उसके विचार हमारे विचारों के समान नहीं है। Can you all say, his thoughts are not my thoughts? क्या आप सब हमारे संग कह सकते हैं कि उसके विचार मेरे विचारों के समान नहीं He हैं? does not think and plan and the way you and I would plan and think. वो परमेश्वर उस प्रकार से बातों की योजना नहीं बनाता और विचार नहीं करता जैसे आप और मैं करते हैं। The first advent of Messiah was to be an advent
of humiliation. और इसलिए उस मसीहा का पहला आगमन इस प्रकार से आगमन था जो कि दीनता का आगमन था। That's the way God planned it. और परमेश्वर ने इसी रीति से इसकी योजना बनाई। We know about Jesus himself. और हम यीशु के विषय में जानते हैं He was God वो परमेश्वर है and he is still God. और वो अभी भी परमेश्वर है। Hallelujah. हालेलुया। But this God has planned his coming in humiliation. लेकिन इस परमेश्वर ने अपने आगमन को बड़ी दीनता के संग योजना And बनाया। that humiliation was to be evident from the time of his conception and birth. और ये दीनता को हम देख सकते हैं जब उसका जन्म उसकी माँ के गर्भ में वो था और उसके जन्म के पश्चात भी। There is a message. और एक संदेश को हम देखते Let हैं। us beware of despising poverty in others. और होने दें हम इस बात के प्रति बड़े संवेदनशील रहें और सावधानी बरतें कि दूसरों की निर्धनता का मजाक ना बनाएं। Neither should we be ashamed of it if God lays it upon ourselves. और ना ही हमें वो शर्म आनी चाहिए या लज्जा महसूस करनी चाहिए अगर परमेश्वर हमें भी निर्धन रखता है। And I am happy about it. और मैं तो खुश हूँ इस विषय में। You know, please forgive me for referring to my own circumstances in और which I was born. कृपया करके मुझे क्षमा करिए, कई बार मैं अपनी परिस्थितियों के बारे में बात करता हूँ। I said it many times. I said it many times. और मैंने कई बार इन बातों को कहा है And I am not ashamed to say it now. और मैं इस बात को दोबारा कहने से भी मुझे शर्म नहीं आता That was my circumstance. क्योंकि वो मेरी परिस्थितियां थी। Poverty. निर्धनता। And I know therefore exactly what poverty is. और मुझे पता है कि वो गरीबी सच में है क्या। But you know what? लेकिन आपको पता है As I क्या, was growing up जैसे मैं बड़ा हो रहा था with us 7 others in the family, 7 और भी हमारे परिवार में थे, we never missed anything in life. हमने अपने जीवन में किसी भी बात की कमी को कभी महसूस नहीं किया। Yes, we used to miss dinner and lunch and so many other things. कई बार हो सकता था रात का खाना नहीं था या दोपहर का भोजन नहीं था। But what I meant is we never missed the most essential things of life, which is knowledge of God. लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात को हमें कभी कमी नहीं हुआ जो कि परमेश्वर के वचन का ज्ञान है। The condition of life which Jesus voluntarily chose और जिस जीवन शैली को या जिस परिस्थिति में यीशु ने आने के लिए चुना should always be regarded with holy reverence. इस बात को, इस परिस्थिति को बड़ी पवित्रता और भय के संग हमें समझना है। If you see someone much lower than ourselves, अगर आप अपने आप से किसी दूसरे को बहुत नीचे या गरीबी में देखते हैं living in poverty, और वो गरीबी में है not have a good decent place to live, और उसके पास एक अच्छा स्थान नहीं है रहने के लिए, please take care as God's people. और परमेश्वर के लोग होने के नाते आप उसकी चिंता करें। Don't belittle them, such people. ऐसे लोगों को नीचा ना दिखाएं That's what God has ordained for them. क्योंकि ऐसा ही परमेश्वर ने उनके लिए योजना रखा Some है। purpose of His own. क्योंकि परमेश्वर की अपनी योजना है उनके लिए। We should resist the tendency to bow down before the rich men. और ये स्वभाव की बड़े प्रसिद्ध और धनवान लोगों के सम्मुख झुकने का जो स्वभाव है इसके प्रति भी हमें सावधान बने And रहना है। make an idol of money. और यह पैसे को अपना मूर्ति या अपना देवता मान लेना। The Bible teaches us और वचन बताता है riches can be our idol. कि कई बार ये पैसा और धन भी हमारी मूर्ति या देवता बन And सकता love है। of money. और वो धन का प्रेम, And unfortunately it is so. और दुर्भाग्य तो ये है कि ऐसा ही होता है। And we must be careful that we do not to fall into that kind of trap. और हमें सावधानी बरतनी है कि इस प्रकार के जाल में हम ना फंस जाएं। These days, और इन दिनों में I am meeting several couples. मैं कई सारे जोड़ों से मिलता हूँ Both of them have good job, और दोनों के पास अच्छी नौकरियां with हैं good salary. और अच्छे वेतन हैं, They deny themselves of so many other things like a promotion
और उन्होंने कई सारी बातों को अपने जीवन में रोक दिया, जैसे पदोन्नति। Promotion means transfer. और जिसका उन्नति का मतलब था कि Transfer उन्हें being स्थानांतरण कर दिया staying जाए, away from family. ताकि अगर स्थानांतरण होता तो अपने परिवार से दूर कर दे जाते। And usually it is the mother who sacrificed the well-paying job और to be at home and be with the children. और कई बार ऐसा होता था कि ये माँ ही होती थी जिन्होंने अच्छी नौकरी को छोड़कर बच्चों के लिए स्थान पहला देकर वो घर में रहकर उनकी देखभाल Or करती। you can hire some maid. या हो सकता है आप किसी दास को भी रख You सकते have the हैं, means. और क्योंकि आपके पास वो रास्ते हैं। But no, लेकिन नहीं, a maid can never be a substitute for mother. लेकिन याद रखिए एक नौकर या एक आया जिसे आप रखते हैं वो कभी भी माँ का स्थान नहीं ले The सकता। tenderness. और वो नम्रता, When a mother holds the baby close to her chest, जब एक माँ एक बच्चे को अपने छाती से लगाती है, that child begins to feel the heartbeat of the mother तब वो बच्चा उस माँ की धड़कन को महसूस and the करता है, warmth from the mother. और वो गर्माहट जो उसे माँ से And मिलती they है, cling to the child, to the mother, और वो अपनी माँ से चिपका रहता है, and grow up in love. और वो उस प्रेम में बड़ा होता है। And that money cannot buy. और ये बात पैसा नहीं खरीद सकती। And a child will always be grateful to the mothers and fathers who cared for them when they were children. और इसलिए ये बच्चे हमेशा अपने माँ बाप के प्रति धन्यवादित और रहने चाहिए जिन्होंने उनकी चिंता करी। And we always have a tendency to bow before a very rich man when he और passes. ये भी हमारे अंदर एक स्वभाव है, जब हम किसी प्रसिद्ध या धनवान व्यक्ति को देते हैं तो उसके सम्मुख झुकने का। And we whisper to others, और हम दूसरों से भी कहते हैं, "Arey, here come, let us all stand." और उसे कहते हैं, अरे देखो वो आ रहे हैं, आओ हम खड़े हो And जाएं। when he comes, और जब वो आते हैं तो हम इस प्रकार झुककर उनके सम्मान में झुकते हैं, simply because he has some money. और इसलिए सिर्फ क्योंकि उनके पास कुछ पैसा है। But he may not have the kind of wisdom that you have. लेकिन हो सकता है उनके पास वैसा ज्ञान नहीं है जैसा आपके पास है। So let us resist that temptation. तो होने दे, ऐसी परीक्षाओं में पढ़ने से हम खुद को रोकें, The example of our Lord is a sufficient answer to that. क्योंकि हमारे परमेश्वर का खुद उदाहरण जो उसने रखा है वो हमारे लिए काफी है। Though he was rich, yet for our sake he became poor. So says the word of the Lord. और भले ही वो धनवान था लेकिन हमारे खातिर वो गरीब बन गया, और ऐसा ही वचन हमें बताता है। Can anybody calculate how rich our Lord is? क्या कोई भी इस बात की गणना कर सकता है कि कितना धनवान हमारा परमेश्वर है? Can? क्या ऐसा हो सकता है? How rich is he? कितना धनवान है वो? You consider the entire creation. आप पूरी सृष्टि को देखिए। These days it seems the scientists are discovering new planets or whatever they are discovering. और इन दिनों में तो Seems to be ऐसा है expanding. कि जो वैज्ञानिक हैं वो नए नए ग्रहों को ढूंढ रहे हैं। And as it is, an earlier information is there is at least 1 billion universes. और जो पहले की ज्ञान हमारे पास था उसका ये था कि लगभग 1 बिलियन ब्रह्मांड मौजूद हैं। Or like our own galaxy. या जैसे हमारी जो गैलेक्सी है उसके समान और कई सारी गैलेक्सी, All the trillions and quadrillions of what? Stars. और इतने सारे जो तारे वहां मौजूद हैं। These stars are not merely shining thing, और- but these stars are said to be the homes of angels. और ये तारे सिर्फ चमकने वाली कोई वस्तु नहीं, लेकिन इन तारों को स्वर्गदूतों का घर भी कहा जाता है। And God the Creator can call out to any star by its name. The Bible says not only these many stars are there, but He has given a name for every star He created. और परमेश्वर पिता किसी भी तारे को उसके नाम से पुकार सकता है, और वचन में इस प्रकार लिखा है कि ना केवल परमेश्वर ने इतने सारे तारे बनाए, लेकिन वो सबको जानता भी है। You know, we even have a song about Star of Bethlehem. और यहाँ तक कि एक गीत भी है जो कि बात करता है बैतलहम नगर के उस तारे के विषय I में। started thinking these days, मैंने इन दिनों में सोचना शुरू किया where did that star come?
कि कहाँ से वो तारा आया। Perhaps God Almighty has called out one of His special star, hey, by name. I don't know what name that star. Come forward. I have an assignment for you. ऐसा हो सकता है कि परमेश्वर ने उस तारे को उसके नाम से बुलाया और उससे कहा कि इधर आओ और मेरे पास एक कार्य है तुम्हारे लिए। And here comes forth that particular star. और यहाँ पर वो तारा सामने निकल आया। And that star fulfilled the master's order. और उस तारे ने अपने स्वामी की बात को सुनकर उस कार्य को पूरा किया। And it is that star that told the wise men that some great king was born in Jerusalem. और ये वो तारा ही था जिसने उस ज्ञानी पुरुषों को ये बताया कि एक महान राजा बैतलहम नगर में जन्मा है। God can do anything. और परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। And planet Earth is one of the smallest star. और याद रखिए ये पृथ्वी सबसे छोटे तारों में से एक है। But even that Earth is too much for us to comprehend. लेकिन फिर भी ये पृथ्वी हमारे मानवीय बुद्धि से समझना और जानना बहुत बड़ी बात है। And God once said to man, और परमेश्वर ने मनुष्य से एक बार इस प्रकार कहा, what can you give me? तू मुझे क्या दे सकता है? If I am hungry, अगर मैं भूखा हूँ, I don't need to come to you and ask for food. मैं तेरे पास आकर खाना मांगने का जरूरत नहीं। Because the 1,000 hills and the cattle therefore all mine. वो हजारों चोटियां पहाड़ियां उनमें मौजूद हर एक पशु मेरा है। The silver and gold on planet Earth are और mine. इस पृथ्वी ग्रह पर सोना और चांदी जो मौजूद है वो भी मेरा ही है। And copper and precious stones and everything is mine. और वो तांबा और वो हर प्रकार के बहुमूल्य तत्व और पत्थर सब कुछ मेरे हैं। Psalm 100 says, the earth and all its fullness all belongs to whom? Belongs to our heavenly Father. और भजन संहिता 100 में इस प्रकार लिखा है कि ये पृथ्वी वो स्वर्ग और उसमें मौजूद हर एक बात किसकी है? हमारे परमेश्वर। Let not the poor man feel sorry for himself or herself, because your Father in heaven owns the entire creations and you are his son or his daughter. और इसलिए मनुष्य को कभी भी खुद को नीचा नहीं आंकना है, ना ही उस विषय में दुख मनाना है, क्योंकि उसका पिता जो स्वर्ग में विराजमान है ये सारी पृथ्वी उसी की है। And so let us always be mindful of those who seem to be poor. और इसलिए हमेशा हम संवेदनशील रहें ऐसे लोगों के लिए जो हमसे निचले दर्जे से And आते let हैं। us admire the amazing condescension of the Son of God. और हम देखें किस प्रकार से इतना महान रीति से वो परमेश्वर उस ऊंचे स्थान से इस देहधारी He हुआ। is the heir of all things. और वो हर एक बात का सृष्टि करता है। Not only took our nature, और ना केवल हमारे स्वभाव को लिया, our nature upon himself, ना केवल हमारे स्वभाव को अपने ऊपर लिया, but took in the most humbling form. लेकिन सबसे दीन रूप को उसने धारण किया। What is it? और वो क्या है? It was a miracle of mercy to come on earth. और ये तो चमत्कार था दया का कि उसे इस पृथ्वी पर वो आया। As what? कैसे? As a poor man. एक गरीब मनुष्य के रूप में, To be despised जिसे तिरस्कार जिसका किया जाए, and to suffer और वो दुखों को उठाए, and to die. और उसकी मृत्यु हो। All for whose sake? और ये सब किसके लिए? God who was rich, वो परमेश्वर जो धनवान है, very rich, और बहुत धनवान, beyond any calculation. और जिसकी गणना हमारे परे है, But for my sake, लेकिन हम मेरे खातिर, for your sake, आपके खातिर, for your sake, आपके he खातिर became poor. वो गरीब बन गया And he lived as a poor man. और एक गरीब मनुष्य के रूप में I जिया। don't imagine he owned more than 2 pairs of clothes. और मैं तो ऐसा सोचता भी नहीं कि वो 2 जोड़े कपड़ों से ज्यादा उसके पास कुछ था। How poor he was. और कितना गरीब वो था। He was poorest of poor. और वो निर्धनों में भी गरीबों में सबसे गरीब। His parents was like that. और उसके माता पिता भी ऐसे ही थे। For whose sake? और किसके खातिर? For your sake. आपके खातिर। For my sake, O Lord. मेरे खातिर। Lift up our hands. आइए हम to अपने God. हाथों को उठाकर Just close your eyes for अपनी 1 आंखों को minute. बंद करें Just give him thanks. और धन्यवाद दें इस परमेश्वर का Lord, if you had not come,
कि अगर परमेश्वर आप नहीं आए होते if you had not taken the form that I have, और परमेश्वर अगर आपने उस रूप को नहीं लिया होता जो मेरे पास है, I would not have understood. I would not have known how great you are and how amazing a God we have. तब मैं कभी भी इस बात को समझ नहीं पाता कि आप कितने महान और कितने अद्भुत परमेश्वर हैं। Hallelujah. हालेलुया। God is so merciful and love. और परमेश्वर दया से भरा हुआ और प्रेम से भरा हुआ। Why should he become? Why should he come through very poor parents and lived as such? और क्यों उसे गरीब माता पिता के एक ऐसे परिवार में आना था और क्यों एक गरीब के रूप में रहना था? Today I can feel very comfortable. और आज के दिन About मैं तो Jesus. बड़ा आरामदायक महसूस करता हूँ। He understands me. वो मुझे समझता है, He understands you. वो आपको समझता है Your struggles in life, और आपके जो मुश्किल घड़ियों से आप निकलते हैं your pain, और आपका दर्द your grief. और आपके वो शोक के He समय understands it वो all. सारी बातों को Your समझता है। loneliness, और आपका एकांत, when people reject you, और जब लोग आपका तिरस्कार when करते you हैं think nobody और cares, जब आपको लगता है कोई चिंता नहीं करता, always remember हमेशा याद there रखिए is someone who cares for एक you. ऐसा है जो आपकी चिंता हमेशा करता है। Hallelujah. हालेलुया। And when he cares, that is good enough for me. और जब वो आपकी चिंता करता है तो सब कुछ हो जाएगा। It was a miracle of his mercy that was born. और ये तो एक उसकी दया का चमत्कार था कि उसने इस प्रकार जन्म लिया। And so let his love constrain us to live not to ourselves but for him. और इसलिए अब होने ये दे कि उसका प्रेम हमें वो मजबूर कर दे कि हम अब अपने लिए नहीं लेकिन उसके लिए We जीने don't पाएं। live for ourselves. हम अपने लिए ना जिएं। And Apostle Paul, by the inspiration of the Holy Spirit, said this. और पौलुस प्रेरित ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा इस बात को कहा You don't belong to yourself कि तुम खुद के हो ही नहीं, because you have been purchased with a price. क्योंकि तुम्हें एक दाम देकर मोल लिया गया है। That price he paid और वो दाम यीशु ने चुकाया is beyond any. For the entire earth, nations, all the nations put together and all the gold put together cannot be. और वो दाम जो यीशु ने चुकाया वो इस पूरे राज्य और इस पूरी पृथ्वी और इसमें मौजूद अगर पूरा सोना और चांदी भी एक साथ ले आए इस दाम को नहीं चुका सकता। You know why? आपको पता है क्यों? Someone has said, किसी ने इस प्रकार and कहा I believe that. और मैं यही विश्वास If करता हूं I were the only sinner in the world, कि अगर मैं ही इस संसार में एकमात्र पापी होता Jesus could have still come in the same manner. He तब came. भी यीशु उसी रीति से आता जैसे वो आया And he would have still lived the way he lived. और वो उसी रीति से जीता जैसे वो जिया And he would have given himself totally to be crucified and break his body and shed his और blood. वो तब भी अपने आप को संपूर्ण रीति से दे दे ताकि वो क्रूस पर चढ़ाया जाए, उसकी देह को तोड़ा जाए Only for me. सिर्फ मेरे लिए। That's the way he considers your value. और इसी रीति से वो आपके मूल्य को भी समझता That's है why he said, और इसीलिए उसने कहा what shall it profit a man if he gains the whole world and loses his own कि एक soul? मनुष्य के लिए क्या ये भलाई की बात होगी कि वो पूरे संसार को पाले लेकिन अपने आत्मा को खो दे। Our God is so great. हमारा परमेश्वर इतना महान है। If you were the only person who needed salvation, और अगर आप ही सिर्फ एकमात्र ऐसे पापी या व्यक्ति होते He would जिसे have उद्धार की still आवश्यकता है, come. वो तब भी आता and died और वो उस क्रूस पर and shed his मरता blood. और फिर भी अपने लहू को बहाता। You understand that? क्या आप इस बात को समझते हैं? You all know Dr. Varghese' testimony. आप सब डॉक्टर वर्गीस की गवाही को जानते हैं And so many young people who are brought there in our center and got back completely healed and restored to humanity. और ऐसे कई सारे जवान
जो इस रिहैब सेंटर में लाए गए और वो फिर से परमेश्वर ने उन्हें छुआ और परिपूर्ण बनाकर उन्हें इस नशे से आजाद कर दिया। If that center had not been there, अगर मान लीजिए ये रिहैब सेंटर, आज की ये संस्था यहाँ पर नहीं these होती hundreds of young men who came और there, ये सैकड़ों की संख्या में जो जवान यहाँ पर आए handsome fellows, और बहुत सुंदर दिखने वाले, but completely ruined and destroyed their लेकिन life. संपूर्ण रीति से अपने शरीर का, अपने जीवन का नाश कर चुके Our थे government could not give them a future. और हमारी सरकार भी उन्हें एक भविष्य नहीं दे पा रही No थी doctor can give them a और किसी future. डॉक्टर ने भी उन्हें भविष्य नहीं दे पाया। Or there are tablets that can suppress their problem, but then if they don't keep on taking it, they will ever be ruined. और हाँ, ऐसी दवाइयाँ तो थी जो उनकी इन आदतों को कुछ समय के लिए दबा सकती थी, लेकिन अगर वो दवाइयाँ वो ना खाएं तो उनकी स्थिति और दयनीय हो But जाती थी। today, लेकिन आज के दिन there are many countries where young people from Lucknow Teen Challenge, और जहाँ पर ऐसे कई सारे देश हैं जहाँ पर लखनऊ टीन चैलेंज से जवान जो यहाँ ठीक हुए और परमेश्वर ने जिन्हें छुआ वो मौजूद हैं living a decent life, और जो एक अच्छे जीवन को बिता रहे हैं having jobs, और उनके पास नौकरियां हैं and many of them are pastors और today, उनमें से कई सारे पासवान हैं preaching the same gospel that I am preaching to और you. वो उसी सुसमाचार का प्रचार करते हैं जिसका प्रचार आज की सुबह मैं आपके बीच कर रहा हूँ। Why? क्यों? They had no hope. उनके पास कोई आशा नहीं थी, But Jesus came. लेकिन यीशु ने एक आशा को दिया। And it's all because Jesus came. ये सिर्फ इसलिए क्योंकि यीशु चिंता करता है। There is no medicine there. कोई दवाई वहां पर नहीं है The only 2-3 medicine they give is this: और 2-3 दवाइयां जो वहां वो उस हमारे लखनऊ टीन चैलेंज में दी जाती हैं वो ये है Bible study, कि वचन, इस पवित्र शास्त्र का अध्ययन, prayer. प्रार्थना। Now prayer is not ordinary. और वो प्रार्थना कोई साधारण प्रार्थना नहीं, Fasting and prayer. उपवास प्रार्थना, Every month. they और have हर 3. महीने उनके वहां उपवास And then प्रार्थना all night prayer. और पूरी रात्रि की प्रार्थना And teaching the word of और God. परमेश्वर के वचन से शिक्षा। These are the medicine. और ये वो दवाइयां हैं। Hallelujah. हालेलुया। Does it work? क्या ये काम करती हैं? You go and hear the testimony. आप जाइए समय निकाल कर और गवाहियों को सुनिए। Hallelujah. हालेलुया। Marriages are restored. और शादीशुदा जो जोड़े थे उनके जो वैवाहिक रिश्ते थे वो वापस जुड़ We गए have a pastor for that center. और एक पासवान उस सेंटर, उस रिहैब सेंटर के लिए है Pastor Stephen. और पास्टर स्टीफन जिनका नाम His है, wife left him. उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया He था was so deep and destroyed himself through drugs. क्योंकि नशा करते करते उन्हें अपने जीवन को इस रीति से मिटा डाला था She didn't want to live with और him. उनकी पत्नी उनके संग जीना नहीं चाहती थी। But he is a pastor there now. नहीं, लेकिन आज के दिन वो उसी रिहैब The सेंटर में एक पासवान है wife has come back. और वो पत्नी वापस उनके संग रह There रही are है two children, और 2 बच्चे उनके पास हैं living wonderfully as husband and wife, bringing up a family. और बड़ी अद्भुत रीति से वो एक पति पत्नी के रूप में परमेश्वर के भय में वो जी रहे हैं, एक Who- अच्छे परिवार को चलते हुए। Who could have done it? और ये कौन कर सकता है? No one कोई और नहीं, but Jesus. सिर्फ यीशु। That's why we make so much fuss about the birth of Jesus Christ. और इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में बार बार बात करते हैं, इसी कारण। And anyone who is listening to me, और इसलिए आज की सुबह यदि जो कोई भी मुझे you सुन are रहा है going through struggle और हो सकता है आप भी मुश्किलों से होकर and के you निकल do रहे not हैं know what to do and where to go. और आपको ये नहीं पता क्या करना है और कहाँ जाना है, Let me tell you, मैं आपको बताना चाहता there हूँ is a place you can वो go. एक ऐसा स्थान है जहाँ आप जा सकते हैं। There is a person to whom you can एक ऐसा go. व्यक्ति है जिसके सम्मुख आप जा सकते हैं, Jesus Christ. वो है यीशु मसीह। Hallelujah. हालेलुया। We sometimes think, हम कई बार ऐसा सोचते हैं, some of our pastors, हमारे कई सारे पासवान my goodness, where have they come from? वो कहाँ से आए हैं? From the gutter. वो कई सारे ऐसे पासवान हैं जिन्हें कहा जा सकता है वो ऐसे नाले से बाहर निकल के आए हैं। And if we had not picked them up अगर हमने उन्हें नहीं उठाया होता and brought them up, और उन्हें उस स्थान पर नहीं लाए sent them होते to Bible college, और उन्हें बाइबल कॉलेज नहीं भेजा they are doing great work, और आज के दिन वो अद्भुत कामों को कर रहे हैं living comfortably और बड़े आरामदायक जीवनों with को a family. और एक परिवार के साथ। Hallelujah. हालेलुया। Why? क्यों? Because of Jesus. यीशु की वजह से।
Why am I here? मैं क्यों यहाँ पर हूँ? Where have I come from? मैं कहाँ से आया हूँ? You all have that testimony. और आप सबके पास यही गवाही है। If it had not been Jesus, और अगर ये यीशु ना होता, what would have been our condition? तब हमारी परिस्थिति क्या होती? And therefore, और इसलिए let His love constrain us होने दे उसका प्रेम हमें मजबूर करे, to live not to ourselves but for Him, ताकि हम अपने लिए नहीं लेकिन उसके लिए जीना सीखें, because we belong to Him. क्योंकि हम उसी के हैं। Another place Paul says, और एक और स्थान पर पौलुस प्रेरित इस प्रकार don't कहता you है know, brother, that you don't live for yourself? कि क्या भाइयों और बहनों तुम नहीं जानते कि तुम अपने खातिर नहीं You जीते, live for others. तुम दूसरों के लिए जीते हो। Hallelujah. Hallelujah. How many of us understand that? और हम में से कितने इस बात को समझते We हैं live for others. कि हम दूसरों के लिए जीते हैं। I was talking to Sister Roshan, please forgive me for taking your name. और मुझे क्षमा करिएगा रोशन दी, आपका नाम आज की सुबह मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। One day we were talking, और एक दिन हम बात कर रहे थे, and she was talking to someone who wanted to go to go for IAS. और वो किसी एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रही थी जो सिविल सर्विसेज की तैयारी को कर रहे थे। I don't even know. She will remember that. और मुझे ये भी नहीं पता कि क्या उन्हें ये घटना याद है कि नहीं। But then लेकिन फिर she said, उन्होंने इस प्रकार कहा, she told her, और उन्होंने इस प्रकार से उससे कहा, if you are a believer, अगर तुम एक विश्वासी हो, you can consider this. आप इस विषय में सोच सकती हो। If you want money, अगर पैसा चाहिए don't go for IAS. तब सिविल सर्विसेज में आने का कोई फायदा But नहीं, outside there are other jobs which pay you better. क्योंकि बाहर ऐसी कई सारी और दूसरी नौकरियां हैं जो अच्छा वेतन देती हैं। Unless you take under table money. और तब तक ऐसा जब तक ना हो जब तक तुम कुर्सी के नीचे से वो घूस लेते हो, Then you can get crores of rupees. तब तो तुम्हारे पास करोड़ों में पैसा होगा। Not lakhs, but crores. लाखों में नहीं लेकिन करोड़ों में, One signature cost 1 crore rupees. क्योंकि एक जो उनका हस्ताक्षर है वो 1 करोड़ रुपए आराम से उन्हें मिल जाएगा। But we are not living for money either. लेकिन हम पैसे के लिए नहीं जीते, You must remember that. और इस बात को तुम याद रखना। You know why I enjoy this job? उन्होंने इस प्रकार से कहा कि तुम्हें पता है मैं क्यों इस नौकरी का आनंद लेती हूँ? Being an IAS officer क्योंकि जब मैं एक IAS अधिकारी हूँ, and dealing with public, अभी मुझे dealing मौका with public. देता है कि मैं लोगों से, जनता से बात करूं people, और लोगों के बीच जाऊं go to people. और लोगों के पास पहुंचूं, No, instead of sitting always in the office और इसकी बजाय कि हमेशा अपने कार्यस्थल में बैठूं and go to where they live और जाऊं ऐसे स्थानों पर जहां वो रहते हैं and see their condition और उनकी परिस्थितियों को देखूं and talk to them और उनसे बात करूं and help them. और उनकी सहायता करूं। That's why I enjoy this ministry. और इसीलिए मैं अपनी इस नौकरी का आनंद लेती हूं। Every job that you hold और हर एक वो नौकरी जो आप करते हैं gives you an opportunity to serve God by serving people. आपको एक मौका देती है कि आप परमेश्वर की सेवा करें लोगों की सेवा करने के द्वारा। What do you gain? आपको क्या मिलता है? You probably will get your daily bread, that's all. आपको सिर्फ हो सकता है प्रतिदिन की रोटी के लिए ही मिले, But there is a satisfaction and peace and joy when you live for God and live for others. लेकिन एक तृप्तता, एक आनंद, एक शांति आपके हृदय में होता है जब आप परमेश्वर के लिए और उसके उद्देश्य के अनुसार कार्य करते हैं। Let His example, our Lord's example, daily bring home to our conscience और होने दे प्रभु यीशु मसीह का ये उदाहरण हमेशा हमारे मनों में इस भावना को लाए, the wisdom of the scriptures in Romans chapter 12 verse 16. और जब हम उस ज्ञान को जो कि रोमियो की पत्री 12वें अध्याय 16वें वचन में जब पढ़ते हैं, I will tell you what it says. और मैं बताऊंगा वहां क्या लिखा है। Mind not high things, but condescend to men of low condition. और अपने मन को इस प्रकार रखें कि ऊंचा ना दिखाते हुए लेकिन अपने मनों को दीन रखते हुए लोगों के बीच काम करें। Paul says, inspired by the Holy Spirit. और पौलुस इस बात को कहता है पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा।
And the next thing I want to say is this. और जो दूसरी बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो ये है, We should notice finally और हमें अंत में इस बात को देखना है, the glorious account of our Lord Jesus Christ which the angel gives to Mary. कि किस प्रकार से वो महिमामय शब्दावली या वंशावली के विषय में जो वो जब्राइल स्वर्गदूत मरियम को बताता है हमारे परमेश्वर के There विषय are में। 4 things the angel told Mary. और 4 ऐसी बातें हैं जो स्वर्गदूत मरियम को बताता The है। first thing he said was, और जो पहली बात वो कहता है Jesus shall be great, कि वो महान होगा, says Gabriel to Mary. और वो जब्राइल स्वर्गदूत मरियम से कहता है यीशु महान होगा। Of his greatness, और उसकी महानता में who we know something already. जिसके विषय में हम कुछ तो जानते हैं, He has brought in a great salvation. और उसने उस महान उद्धार को लेकर के आया, He has shown himself a prophet, और उसने इस बात को दर्शाया और दिखाया कि वो एक भविष्यवक्ता है, greater than Moses. और वो मूसा से बड़ा भविष्यवक्ता, And is a prophet greater than Moses. और वो एक मूसा से भी बड़ा भविष्यवक्ता, Moses was a great prophet. और मूसा एक बड़ा भविष्यवक्ता था, And he is a great high priest. और वो एक महान सबसे बड़ा वो याजक है, मुख्य याजक, Greater than Aaron. और हारून से भी मुख्य, And he shall be greater still, और वो उससे भी महान ठहरेगा, when he shall be the king of all kings and lord of all lords. जब वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु ठहरेगा। That is his greatness. और ये है उसकी महानता, If we can understand. अगर आप समझने पाए। He is greater than any. He is greater than Solomon. और वो किसी से भी महान है, यहाँ तक कि सुलेमान राजा In से भी, all his wisdom. और अपने पूरे ज्ञान में। Solomon is considered to be great. और सुलेमान राजा को सबसे महान समझा जाता था, But when Jesus came, लेकिन जब यीशु का आगमन हुआ, he is greater than Solomon. वो सुलेमान से भी महान है। Why? He is the fountain and source of all wisdom, knowledge and और understanding. put ऐसा together. क्यों है? क्योंकि ये प्रभु यीशु ही है जो कि सोता है हर एक बुद्धि, हर एक ज्ञान और हर एक समझ का। And secondly, और दूसरी, he shall be called the Son of the Highest. और वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। Gabriel said to Mary, और गैब्रियल स्वर्गदूत ने इस बात को मरियम से कहा, he was so before he came to this world. और वो इससे पहले कि इस संसार में आता, वो पहले से ही परमेश्वर का पुत्र He था। was from all eternity, और वो उस अनंत से the Son of God. वो परमेश्वर का पुत्र था, It's always been. और वो हमेशा रहेगा, Equal to the Father और वो पिता के बराबर in all things. सारी बातों में। He was from all eternity, और वो अनंत से था, but he was to be known and acknowledged as such by the church. लेकिन उसको ऐसा ही जाना और ऐसा ही मानना जाना जरूरी था कलीसिया के द्वारा। How? कैसे? Equal to God the Father. कि वो परमेश्वर पिता के बराबर है। The Messiah was to be recognized and worshipped as nothing less than the very God. और वो मसीहा का आराधना और उसकी प्रति भक्ति उतनी ही हमें रखनी थी जितनी परमेश्वर पिता के प्रति। And Jesus himself said, और यीशु ने खुद इस बात को कहा I and my Father are one. कि मैं और मेरा पिता एक हैं। Then in another place he और said, एक दूसरे स्थान में वो इस प्रकार कहता he है, who saw me और or जिस- see me has seen God. जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। What do these scriptures mean? और इन वचनों का क्या अर्थ है? He is equal to God the Father. कि वो परमेश्वर पिता के बराबर God है, the Father is to be worshipped. और परमेश्वर पिता का आराधना करना है। God the Son therefore is to be और इसी worshipped कारणवश equally. परमेश्वर पुत्र का भी हमें Because he is आराधना equal करना to है, God the क्योंकि Father. वो परमेश्वर पिता के बराबर है। Hallelujah. हालेलुया। We bow before God और the इसलिए Father. हम परमेश्वर पिता के And सम्मुख we अपने सरों को झुकाते हैं, bow before Jesus. और हम उस यीशु के सम्मुख भी अपने सरों को झुकाते हैं Yes, and worship him और उसकी आराधना and करते हैं exalt him. और उसके नाम को He ऊंचा is उठाते above हैं। all. वो सारी बातों के ऊपर है। Hallelujah. हालेलुया। He is from eternity to वो eternity. युगानुयुग से है।
Anyone who has the Son has the life. और जिसके पास भी पुत्र है उसके पास जीवन है। So he is to be worshipped. He is not less than God the Father. He is equal. और इसलिए याद रखिए वो पिता परमेश्वर से कम नहीं लेकिन उसके बराबर है। He is worthy of our worship. और वो हमारी आराधना के Why योग्य we है। worship Him? और क्यों हम उसकी Not आराधना करते because anything He does. और वो इसलिए नहीं क्योंकि वो जो कुछ Not हमारे लिए because He करता has है। blessed us. और इसलिए नहीं क्योंकि उसने हमें Not आशीषित किया because He है। has given us money. और इसलिए नहीं क्योंकि उसने हमें पैसा दिया है। Even if He has not done anything else, अगर मान लीजिए वो हमारे लिए कुछ भी नहीं करता, we still have to bow before Him and worship Him हमें फिर भी उसके सम्मुख दंडवत होकर उसकी आराधना करनी है। for only one reason. सिर्फ एक ही कारणवश, He is worthy. क्योंकि वो योग्य है। Hallelujah. He हालेलुया। is worthy to be worshipped. और वो आराधना के योग्य है। Hello. He is worthy to be और worshipped. आराधना के योग्य है। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं? Then lift up your hand और आइए हम अपने हाथों को उठाएं and give Him और glory. उसे महिमा दें। Worship Him for what? और उसकी आराधना किस लिए हम For करते हैं? nothing else but He is worthy. किसी भी कारण नहीं, क्यों सिर्फ इतना क्योंकि वो योग्य है। That's why we worship Him. और इसीलिए हम उसकी आराधना करते हैं। Let me ask you this. मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, Does He have to do anything else in order for you to worship क्या Him? उसे और कुछ करना जरूरी है कि वो आपकी आराधना को आपसे Does ग्रहण He करे? have to give you some more money? क्या आपको कुछ और पैसा उसे देना पड़ेगा? A big house? क्या एक बड़ा घर? How much money Lazarus the beggar had? और कितना पैसा उस भिखारी लाजरस के पास था? He didn't have any money. उसके पास कुछ पैसा He नहीं था remained as a beggar और वो एक भिखारी के ही रूप and में as a रहा। sick person, और एक बीमार के रूप में, stinking. और उससे हो And सकता the है बदबू dogs आती used to come and lick his. और कुत्ते आकर उसे चाटते थे। But you know what? लेकिन आपको पता है क्या? One day he died, एक दिन उसकी मृत्यु हो गई and the rich man also died. और वो धनवान व्यक्ति का भी मृत्यु हुआ। And where did the rich man और go? कहाँ पर वो धनवान गया? Into the bottom of hell. और वो स्वर्ग के नीचे पहुंचा, From where he longed for that beggar Lazarus, who is now seated in the bosom of Father Abraham. और जहां से उसने उस लाजरस भिखारी की ओर देखा जो कि इब्राहिम पिता की गोद में बैठा है। Father, please send him with a drop of water that he may put it into my tongue. और उसने ये अनुरोध किया कि पिता होने दे लाजरस आकर अपनी उंगली में एक पानी की बूंद को मेरी जुबान पर रखने पाए। Lazarus also died. और लाजरस की भी मृत्यु हुई। Where did he go? वो कहाँ गया? The angels came और वो स्वर्गदूत and आए he carried him. और उसे उठा कर ले गए। Not his body, उसके शरीर को नहीं, but Lazarus, लेकिन लाजरस को, the real man, वो जो सच्चा व्यक्तित्व है, and took him into Abraham's bosom. और उसे उठाकर अब्राहम की गोद में रखा। That is an expression given for paradise. और एक वो ऐसा संदर्भ है जिसे हम स्वर्ग के लिए कहते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Till his death, और उसकी मृत्यु तक that Lazarus remained faithful and loyal to God. वो परमेश्वर के प्रति वो लाजरस विश्वास योग्य और वफादार बना रहा। He prayed. और उसने प्रार्थना किया, He worshipped God. उसने परमेश्वर का आराधना किया And he looked at his sick body. और उसने अपने बीमार शरीर की ओर देखा And he said to और himself, अपने आप से कहा, one of these days, इन दिनों में से किसी एक I will दिन leave this body मैं इस शरीर को त्याग दूंगा and I will go. और मैं जाऊंगा। Amen. आमीन। Everything you have, you will leave this world. और जो कुछ भी आपके पास है आप यही छोड़कर जाएंगे। All because of what? और ये सिर्फ किस लिए? Jesus came. क्योंकि यीशु आया। That's why. इस कारण He came and lived just like you and me. वो आया और आपके और मेरे समान जिया। He was rich but became poor. और for वो our sake. धनवान था, समृद्ध था, लेकिन That वो हमारे through खातिर his गरीब बना, poverty we may be rich. ताकि उसकी निर्धनता के द्वारा हम धनवान बना दिए जाएं। Who is richer than a man or a woman who walks with God? और कौन धनवान या और समृद्ध हो सकता है उस स्त्री या पुरुष से ज्यादा जो परमेश्वर के संग he चलता है। doesn't need a bank full of money उसके पास ऐसा बैंक का खाता होना अनिवार्य नहीं जो पैसे से भरा हो to be happy. कि वो खुश हो। Happiness cannot be bought with money. और याद रखिए खुशी को आप पैसे से नहीं खरीद सकते। And thirdly, और तीसरी बात, the Lord God shall give unto him
the throne of his father David. और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा। So said Gabriel to Mary. और इस बात को जब्रियल स्वर्गदूत ने मरियम से कहा। And he shall reign over the house of Jacob forever. और वो याकूब के घराने पर सदा के लिए राज्य करेगा। Now, the literal fulfillment of this part of a promise is yet to come. और इस वादे का अगर हम पूरा होना देखना चाहते हैं, उसका होना अभी भी बचा है। Israel is yet to be gathered. और इजराइल का घराने का इकट्ठा होना अभी भी बचा The है। Jews are yet to be restored to their own land. और यहूदियों का वापस उनके घर में आना, उनकी जमीन, उनकी भूमि पर And आना they अभी बचा have to है। look to him whom they have pierced. और उन्हें उसकी ओर देखना अनिवार्य है जिसको उन्होंने वो भाला उसके बगल में And घुसाया। there is going to come a day very soon they will look to him to be their king again. और एक दिन ऐसा बहुत जल्द आ रहा है कि फिर से ये सब उसी की ओर देखेंगे अपने राजा की रूप में। And it shall surely happen one of these days. और इन दिनों में से किसी एक दिन ऐसा जरूर होगा। Israel is already being gathered. और पहले से इजराइल के घराने के लोग जगह जगह से And they आकर are being इजराइल वापस restored लौटते to हैं God. और वापस परमेश्वर से जुड़ रहे And हैं। all the great tribulation that is to come is meant for their restoration. और वो महाक्लेश जो आने पर है ये उनके बचाने के लिए है। And finally, और अंत में of the kingdom of Jesus, there shall be no end. और उस यीशु के राज्य का कभी अंत ना होगा। So said Gabriel to और Mary. ये जब्रियल स्वर्गदूत ने मरियम से कहा। Before his glorious kingdom, और उसके महिमामय राज्य से पहले the empires of this kingdom of this world shall one day go down and pass away. और इस संसार के जो राज्य और बड़े बड़े सम्राट हैं वो गिरा दिए जाएंगे। Like Nineveh जैसे निनिवे के विषय and में Egypt या मिस्र के विषय में and Babylon या बेबीलोन के विषय में and the great Roman Empire, और वो रोमियो का बड़ा सम्राट Napoleon's empire और या नेपोलियन का बड़ा and साम्राज्य Hitler's या empire, हिटलर का बड़ा and साम्राज्य today modern time, और आज के तकनीकी the समय में American empire, वो अमेरिका का जो the British साम्राज्य empire. ये जो ब्रिटेन का The साम्राज्य British है, Empire was known as an empire without any sunset. और जो ब्रिटेन का जो साम्राज्य था उसे एक ऐसा साम्राज्य कहा जाता था जहां पर सूरज कभी डूबता That नहीं। means from America to India they were ruling. और जिसका मतलब था अमेरिका से लेकर भारत तक उनका राज्य था। And the Russian Empire, और वो रशिया का साम्राज्य they all gone down, but Russia is coming up again. और फिर से वो रशिया ऊपर की ओर बढ़ता है। According to the word of God. और परमेश्वर के वचन अनुसार And China और वो चाइना and British Empire. और वो ब्रिटेन का All साम्राज्य these worldly empires will have to be brought down and finished. और ये जो सांसारिक साम्राज्य है ये नीचे गिरा दिए जाएंगे और इनका अंत हो जाएगा। And the saints of the Most High shall take the kingdom. और जो संत हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वो राज्य करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Who are the saints? और कौन है वो संत? The Old Testament saints, और वो पुराने नियम the के New संत, Testament वो नए saints. नियम के संत। We are saints of और God. हम सब परमेश्वर के संत हैं। Hallelujah. हालेलुया। Before Jesus, every knee shall और bow उस यीशु के सम्मुख हर एक घुटना झुक and जाएगा every tongue will और हर एक confess जुबान इस बात का अंगीकार that करेगी Jesus Christ is Lord, कि वो यीशु ही वो जिंदा to खुदा the है, glory of God. ताकि परमेश्वर पिता को इस बात से महिमा मिले। Hallelujah. हालेलुया। And among them, और उनके बीच में the great Hitler will be there. Hitler. और वो महान हिटलर भी मौजूद होगा The great Alexander will be और here. महान सिकंदर भी मौजूद होगा And all the Roman Neros will be और there. जितने केसर रोमी साम्राज्य के पास थे सब मौजूद And होंगे the President of America will be और there. अमेरिका देश का जो राष्ट्रपति And है the वो होगा Russian authorities will be और there. रशिया के अधिकारी मौजूद And the होंगे great military generals will be there. और महान जो सेना नायक थे वहां मौजूद होंगे। Hallelujah. And हालेलुया। they all shall bow before this Lord.
और ये and सब के God. सब इस परमेश्वर और राजा के सम्मुख And they दंडवत हो all जाएंगे will confess और वो हर एक जुबान इस that बात का अंगीकार Jesus करेगी Christ is Lord. और कि ये यीशु ही परमेश्वर है We are now confessing और अभी तो हम अंगीकार that करते हैं Jesus is my Lord. कि यीशु मेरा परमेश्वर He है, is my God. वो मेरा प्रभु He है, is my वो Redeemer. मेरा छुटकारा He करता is है, my God. वो मेरा प्रभु है। Hallelujah. हालेलुया। I may be poor. और हो सकता है मैं I गरीब may हूँ be despised और मैं ठुकराया जाता हूँ, and persecuted मुझे सताया जाता and है troubled और मैं घबराता and हूँ may be killed. और मुझे मार दिया But जाए, one of these लेकिन days, इन दिनों में से एक दिन my Lord is going to come मेरा परमेश्वर आने वाला and है the dead in Christ shall rise first. और वे जो प्रभु में सो गए हैं वो पहले उठा लिए जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। And my wife will rise again. और वे फिर से उठा लिए My जाएंगे, wife will rise again. मेरी पत्नी And उठेंगी your loved ones will rise और आपके again. प्रेमी जन भी फिर से उठा लिए And we जाएंगे shall be changed. और हम बदल दिए जाएंगे You know, the dead in Christ shall rise again. और जो प्रभु में सो गए हैं वो उठा With the लिए जाएंगे resurrection body. और वो पुनरुत्थान And शरीर we के who साथ are और alive, हम जो अभी भी we जीवित हैं shall be transformed. हम परिवर्तित हो That जाएंगे, means we shall be changed. जिसका मतलब है हमारे ये देह We बदल too will जाएगी have the resurrection body. और हमारे पास भी वो पुनरुत्थान का शरीर होगा। Hallelujah. हालेलुया। And together we shall be caught up और हम एक साथ पलक झपकते ही उठा and लिए meet the जाएंगे Lord in the और air. हम उस परमेश्वर से बादलों And पर from मुलाकात there करेंगे He will take us, lead us, and take us to our heavenly Father's और home. वो हमें हमारे स्वर्ग पिता के घर की The ओर ले place जाएगा that Jesus has और prepared. वो स्थान जो यीशु ने हमारे लिए तैयार किया। Hallelujah. And हालेलुया। then there is this 7 years of और tribulation. उसके बाद ये 7 साल का कलेश का समय And आएगा at the end of it all, और इस 7 साल के पश्चात Jesus will come, यीशु का दूसरा आगमन होगा destroy the और Antichrist, वो मसीह विरोधी का नाश कर and देगा defeat all his enemies. और उसके सारे शत्रुओं का They विनाश all will करेगा be sent into their rightful places. और उनके सही स्थानों पर उनको भेज देगा And then he will establish his kingdom. और वो 1000 सालों के लिए अपने राज्य की स्थापना को करेगा 1,000 years. और 1000 साल का Who राज्य shall reign with him? और उसके संग कौन राज्य He करेंगे will be the King of Kings. और वो तो राजाओं का राजा है And the saints of God shall reign with him. और परमेश्वर के संत उसके संग राज्य करेंगे। Oh, hallelujah. हालेलुया। You think yourself poor, और अगर आपको लगता है कि आप गरीब हैं, despised, आपको ठुकराया जाता है, troubled, आप भय में हैं tortured, beaten, और आपको मारा जाता है, hallelujah, हालेलुया, no food. और कोई खाना नहीं, Oh, let this realization stir you up. होने दे ये वास्तविकता आपके हृदय को जागरूक करे। Are you sad or happy? क्या आप खुश हैं या दुखी हैं? Are you? I thought when you hear this kind of a message, you will shout, you will dance, and you will rave. और मुझे तो ऐसा लगा जब ऐसा संदेश आप सुनेंगे तो आप चिल्लाएंगे, Yes. आप नाचेंगे क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से। Arre, let there be some sign of rejoicing at least. हालेलुया। You are going to rule. क्योंकि आप राज्य करेंगे, You are princes and आप princesses. राजकुमार और राजकुमारियां होंगे You are meant to reign with Christ. और आपका तो योजना ये है कि आप प्रभु यीशु के The संग राज्य kingdoms करेंगे of this world shall become His kingdom. और इस राज्य के जो साम्राज्य हैं वो उसके राज्य बन And जाएंगे we shall possess it. और हम इन पर राज्य करेंगे And we shall rule over it. और हम इनके ऊपर राज्य करेंगे। Amen. आमीन। Are you happy? क्या आप खुश हैं? Hallelujah. हालेलुया। Who gets all the glory for this? और किसे सारी महिमा मिलेगी इन बातों के लिए Who gets all the praise for this? और किसे इन सारी स्तुति मिलेगी इन बातों के Our लिए? Lord God Almighty, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान who loved us so much. जिसने हमसे ऐसा प्रेम किया, Shall we rejoice then? क्या इसलिए हम आनंदित ना हो जाएं? Come on, lift up your hands. आइए हम अपने हाथों को उठाएं With the loudest voice you can ever produce, just say और hallelujah. ऊंची आवाजों में आप हालेलुया कहें। Hallelujah. हालेलुया। Holy God. And if God's people should be alert, and you should always have this life within you to rejoice, jump and shout and dance. और परमेश्वर के लोग होने के नाते आपके भीतर हमेशा ये जीवन होना चाहिए कि आप हमेशा चिल्लाकर उसके लिए गीतों को गा सके
Let's all stand. आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। Hallelujah. हालेलुया। The kingdoms of this world has become his kingdom. और इस राज्य के जितने भी साम्राज्य हैं वो उसके साम्राज्य बन चुके हैं। His kingdom alone shall prove to be an everlasting kingdom. अब उसका ही साम्राज्य युगानुयुग तक बना रहेगा And his dominion shall not pass away. और उसका राज्य कभी खत्म ना होगा। Daniel 7 verses 14 and और 27. दानियल नबी की पुस्तक 7वां अध्याय 14वां और 27वां वचन। And true Christians should dwell on this truth and comfort themselves. और जो सच्चे मसीह हैं उन्हें इस सच्चाई पर जीना है और खुद को सद्भावना। Today you are poor और आज के दिन हो सकता है आप गरीब हैं and despised, और आपको ठुकराया जाता है, but you are on the conquering side. लेकिन याद रखिए आप जयवंत के ओर हैं। Come on, everybody shout. और एक साथ सब लोग चिल्लाएं। Say it in Hindi. Hindi. हम You are on the conquering side. हम उस जयवंत की ओर हैं। हम जयवंत की ओर हैं. हम जयवंत की ओर हैं। Come on, everybody say, I am on the conquering I side. am on the conquering side. Hallelujah. Hallelujah. You are tired and hungry. Praise. But today you are poor आज के दिन हो सकता है आप गरीब हो, and you are despised, हो सकता है ठुकराए जाते हो, but you are on the conquering side. लेकिन आप उस जयवंत की ओर हैं। When these kingdoms shall become the kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. और ये सारे राज्य हमारे प्रभु यीशु मसीह के साम्राज्य बन जाएं। How can I close this without that song? और कैसे मैं सभा को समाप्त There is somewhere there is a hymn book. Yeah. When we all get to heaven, और जब हम सब स्वर्ग में होंगे, hallelujah, हालेलुया, provided that we all are there. Are you all ready? क्या आप सब तैयार हैं? Amen. आमेन। I am ready. मैं तैयार हूँ। Praise the name of the Lord. Play. When we all get to heaven, yeah, please go down. You sit down before you faint.